introduction of operating system. You all might have heard about operating system. Operating system is basically a software program, a software module that is the basic unit which provides functioning to your computer system. You have a computer system, you have keyboard, mouse, you have a central processing unit, you have a screen to display, but all these hardware parts will function only when you are having a software program that can govern the functionality of these hardware programs, hardware modules, hardware tools. So for that, we require a sophisticated software tool which defines each and every functioning, each and every basic functioning of the computer system, of the hardware unit. So generally we can say it acts as an interface between the user and the hardware part of your computer system. So the main goal of the operating system is to execute the user programs. You are the user of the computer system. So whenever you want to execute some particular task, whether you are playing a movie, whether you are doing some MS Word work, whether you are working on the Excel, or you are doing some any other kind of task in your computer system. So that task will be executed by the operating system only. Because whatever kind of task, whether you are solving any mathematical problem or any other thing, everything is governed and executed by the operating system itself. Another one task is to make the computer system convenient to use. Operating system as a software module has an interface. An interface is like a gateway which provides an access mechanism to your resources of the computer system. आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास मेमोरी है, आपके पास स्टोरेज के लिए आपके पास प्रिंटर है, स्कैनर है, यू आर हैविंग माइक्रोफोन, यू आर हैविंग कैमरा, web camera attached to your computer system, or any other kind of resources that are attached to your computer system. If you want to access them, you need a particular kind of gateway, an interface through which you can interact with the machine. So it is that operating system which provides an interface through which you will access each and every resource of the computer system with the help of this. The main thing is that it is the basic building block of the computer system. अगर computer system के अंदर operating system ही नहीं है, तो it means your computer system is nothing less than a dumb machine, dumb hardware part, which cannot do anything, which cannot perform any task, which cannot give you output related to anything, related to any problem that you want to solve. So basically you require a software program जो क्या करेगा, जो बताएगा जी कीबोर्ड को क्या काम करना है, माउस को क्या काम करना है, स्क्रीन को क्या काम करना है, प्रोसेसर को क्या काम करेगा, मेमोरी है उसको क्या काम करना है. मींस each and every task of every component of your computer system will be governed and managed by the operating system. Then we come to the computer system structure. The general structure of the computer system is basically divided into 4 components. First one is the hardware component, second one is the operating system, third one is the application programs, and fourth one is the user. So hardware, all the parts of the computer system that are visible to you, which you can feel, you can touch them, which are having some physical characteristics, or are termed as the हार्डवेयर कंपोनेंट्स. लाइक आपका प्रोसेसर है, आपके मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं आपके, ठीक है जी. ऑल दीज गवर्न द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. देन कम्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट.
So operating system basically controls and coordinates each and every part of the computer system and each and every functioning of your system. So that is the operating system. Generally, it provides an interface through which you interact with the computer. Then application programs. As you are having an operating system, so operating system has some set of functionings, but these functions are limited in nature and generally provide the support to your computer system for its basic functionings. In addition to that, if you want some further functions or processings, so you require some kind of software programs which deal with the functioning that is desired and required by the user. For example, if you want to make some document, if you want to prepare some document, so you require a specific software module which can help you in creating the document with the content that you have and also providing the capability to add or to modify the new content or to remove the existing content which is of no use to you. That means you can manipulate the data within the software program with the data that you want to work with. So various kind of application programs like MS Office Suite which comprise of Word, Excel, PowerPoint, Access and other tools, compilers, web browsers, database systems and video games. These are the application programs that are of specific uh, requirement to the user to govern a particular task. Then comes the users. Users are the people who intend to use the application of the computer system, who intend to use the features and functionings of the computer system for its own purpose. This is how the four components of the computer system are related to each other. At the bottom level, at the base level, there is a computer hardware, because the ultimate task of the computer system is to be performed by the hardware part of the system. But hardware alone can't perform the task until unless it is having a software program, it is having some set of commands which will govern its functioning. So that set of commands will be defined by the operating system. So operating system is directly attached with the computer hardware to provide its functionings. Then comes application programs. Application programs interact with the operating system. These doesn't interact with the computer hardware. These interact with the operating system. That means when you are having some kind of application program like MS Office, so users need to install that software program into your computer system. So that software program will be installed into your operating system, and its functioning will be added to the functioning part of the operating system. यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर क्या है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे बिल्ड एम्बेड हो जाएंगे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एम्बेड हो जाएंगे जी, ताकि जो फंक्शन क्योंकि अल्टीमेटली हार्डवेयर से कौन काम करवाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करवाएगा। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम को फंक्शनिंग किसकी पता चलेगी, एप्लीकेशन प्रोग्राम, चाहे वो एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावरपॉइंट है, उसकी फंक्शनिंग कहाँ पे डिफाइन हो जाएगी, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। एंड देन द ऑपरेटिंग सिस्टम विल गवर्न द हार्डवेयर टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क। ठीक है जी। और ये सारा काम कौन कर रहा है, यूजर एट द टॉप लेवल। यूजर कैन बी, देयर कैन बी अन नंबर ऑफ यूजर्स बिकॉज वी आर डीलिंग इन अ मल्टी यूजर एनवायरनमेंट वेयर मल्टीपल यूजर्स कैन हैव एक्सेस टू द कंप्यूटर रिसोर्सेज। ठीक है जी। तो यूजर्स क्या करता है, यूजर इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इंटरेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। So we are coming to a proper definition of the operating system, that what operating system actually does. So it depends upon the point of view, it depends upon the individual's requirements, it depends upon the individual's uh, situation in which the
system is required to work. So operating system governs all kind of tasks, but it depends upon what kind of task the user or the environment wants it to perform. So generally, uh, the user wants convenience from the computer system, ease of use, and good performance. Definitely, if you are using a machine and a machine doesn't provide you convenience, means effectiveness of doing the things and ease of use. If you are using a machine and its interface lets you into the complexity of the access to its uh, operations, then definitely that is of no use. That means it provide an interface, easy to use interface, that you can easily use the functionings and features of the computer system effectively. Then good performance. Good performance का मतलब performance is the number of tasks that are executed by the computer system in a limited or you can say in a specific time period using the existing resources. That is the performance. यानी कि जितने भी resources available है उन resources को use करके what output can be generated by the computer system. That is the performance. So definitely you require high outcome by using the available resources. That is the good performance of the computer system. Don't care about resource utilization. Resource utilization generally comes into the existence when you are having a distributed environment where multiple of users are operating on the system from the different geographical locations. Then resource utilization concept comes into existence. But if you are dealing with a standalone computer system, so their individual user is working on the computer for its own sake. So for that, resource utilization is not the main concept. Main concept is the task that needs to be performed. जो काम आपको करना है वो आप काम होना चाहिए. उस आपको कोई मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल यूजर को कि आपके कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. ठीक है जी. तो जनरली वी आर डिस्कसिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम बात कर रहे हैं शेयर्ड कंप्यूटर सिस्टम्स की, जहाँ पे जो आपके सर्वर्स होते हैं या मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जो क्या करते हैं विच आर अटैच्ड ओवर ए नेटवर्क टू द नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स. तो जो नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स है वो क्या है, दिस एक्ट एज ए क्लाइंट्स टू द सर्वर. यानी कि क्लाइंट सर्वर मैकेनिज्म फॉलो होता है ओवर द नेटवर्क, जिसके अंदर क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को और सर्वर क्या करेगा, रेस्पॉन्स देगा क्लाइंट को. तो उस पूरे इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो रहा है, जो सर्वर जो है उसका रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज हाईली डिजायर्ड, बट क्लाइंट एट क्लाइंट साइड इफ यू टॉक, तो वहां पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज नॉट एज नेसेसरी एज इट इज बिकॉज दैट इज ऑपरेटेड बाय ए सिंगल यूजर. ठीक है जी. Then comes operating system definition. तो जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, एज ए रिसोर्स एलोकेटर एंड एज ए कंट्रोल प्रोग्राम. तो इफ यू टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स एलोकेटर, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज आपके हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वट एवर रिसोर्सेज आर देयर, वेदर इट इज द सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, वेदर दीज आर द हार्डवेयर रिसोर्सेज, all are governed and managed by the operating system. Also it decides between conflicting requests. conflicting requests का मतलब क्या है कि आपका जो सिस्टम हो मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है, जहां पे क्या कर रहा है बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं. तो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा, कंफ्लिक्ट्स कैन अराइज कि कौन सी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जाए. ठीक है. तो वो वहां पे देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ए डिसीजन मेकिंग मॉड्यूल, जो क्या करेगा, जो डिसाइड करेगा कि किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है और किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है, कौन से रिसोर्सेज किस प्रोसेस को अलोकेट करने हैं और कौन से रिसोर्सेज किस प्रोसेस को अलोकेट नहीं करने हैं. क्योंकि हमें सिस्टम को क्या करना है, वी जस्ट नीड द सिस्टम टू बी इन ए वर्किंग कंडीशन. ऐसा भी नहीं है कि हम कि जो सिस्टम है वो रिसोर्सेज इस तरीके से एलोकेट करे कि सारा सिस्टम ही क्या हो जाए, सीज हो जाए, यानी कि द कंडीशन ऑफ डेडलॉक हैपन इन द सिस्टम. तो whenever the operating system is acting as a resource allocator, so it monitors each and every aspect of
allocating the resources or fulfilling the request of the particular process, कि कहीं पे भी सिस्टम के अंदर डेडलॉक की कंडीशन ना अराइज हो, नहीं तो सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका हैंग हो जाएगा। जो हम बोलते हैं कि जनरली जो सिस्टम हैंग हो गया, कई बार फंक्शनिंग बंद कर देता है कंप्यूटर सिस्टम, तो उस प्रोसेस उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिस्टम डेडलॉक बोलते हैं। कि सिस्टम क्या हो गया, डेडलॉक स्टेट में चला गया, वहां पे एक ऐसा लॉक इंप्लीमेंट हो गया सिस्टम के ऊपर जो क्या कर गया, कंप्यूटर सिस्टम को डेड स्टेट के अंदर ले गया। दैट मीन्स कंप्यूटर इज नॉट इन द कंडीशन टू परफॉर्म एनी सिंगल टास्क ऑफ द यूजर। ठीक है जी, तो ये तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स एलोकेटर। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए कंट्रोल प्रोग्राम। कंट्रोल प्रोग्राम एज ए कंट्रोल प्रोग्राम मतलब क्या है कि जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है आपका कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, दैट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। कंट्रोल का मतलब क्या है कि भाई आपको कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लग रहा है, ठीक है, और इन बिटवीन कोई एरर आ गया, तो अब एरर आ गया तो वहां पे क्या होगा, देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म जो क्या करे, उस एरर को हैंडल करे, उस एरर को डील करे, और उस एरर को क्या करे, आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करे। ठीक है जी, तो दैट टास्क इज आल्सो बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट एक्ट्स एज ए कंट्रोल प्रोग्राम जो मॉनिटर करता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग को, कि कहीं पे भी अगर कोई एरर आता है या कोई इम्प्रॉपर यूज होता है, कोई रफ यूसेज ऑफ द रिसोर्सेज इन द कंप्यूटर सिस्टम है, तो वहां पे भी क्या करता है, ये उसको आइडेंटिफाई करके क्या करता है, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है। ठीक है जी, रफ यूसेज का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल सम मैलिशियस प्रोग्राम गेट्स एंटर्ड इनटू योर कंप्यूटर सिस्टम। मैलिशियस प्रोग्राम यानी कि आपके कोई वायरस है या कोई वॉर्म ट्रोजन हॉर्स है, कोई ऐसा अनवांटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाए जो क्या कर रहा है, जो इनडायरेक्टली आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है फॉर नॉन प्रोडक्टिव टास्क। ठीक है जी, तो वहां पे क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उस चीज को मॉनिटर करता है और उसको आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करता है। ठीक है जी, तो जनरली ये क्या कह रहा है कि नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। जनरली कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डेफिनेशन नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ जॉब्स द कंप्यूटर सिस्टम डज, द ऑपरेटिंग सिस्टम डज, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, तो जब भी आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हो, तो जो मैन्युफैक्चरर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो उसको कंप्लीट एज ए पैकेज आपको डिलीवर करता है। ठीक है जी, जिसको जिसके अंदर जो फंक्शनिंग डिफाइंड है, वो फंक्शनिंग आप यूज करोगे, और उसके अलावा आप क्या करोगे, उसके अलावा यू कांट यूज एनी अदर फीचर और यू कांट मेक मॉडिफिकेशंस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज नॉट ओपन सोर्स। अगर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक लिनक्स, तो वहां पे यू कैन मेक चेंजेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एज पर योर रिक्वायरमेंट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द commercial operating systems that are नॉन नॉट दैट आर नॉट ओपन सोर्स। तो उसके अंदर क्या होता है, जो सोर्स मैन्युफैक्चरर ने आपको दे दिया एक एज ए सॉफ्टवेयर पैकेज, तो आप उसी को यूज करोगे, उसके फंक्शनिंग्स को यूज करोगे जी। ठीक है जी, इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो क्या होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, जब भी आपका कंप्यूटर ऑन है, व्हेन योर कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, तो वहां पे एक प्रोग्राम, एक मॉड्यूल जो है वो कंटिन्यूअसली फंक्शनिंग में रहता है, और उसको हम बोलते हैं कर्नेल। ठीक है जी, तो कर्नेल इज द मेन पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या करता है, जो आपको फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है। जनरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक आपका यूजर मोड होता है और एक आपका कर्नेल मोड होता है। यूजर मोड के अंदर आपके यूजर के प्रोग्राम्स होते हैं, और कर्नेल जो मोड होता है, दैट इज डायरेक्टली इन इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि प्रोग्राम्स, यूजर प्रोग्राम्स जो यूजर क्रिएट करता है, वो यूजर स्पेस के अंदर जाते हैं, वहां से आपके प्रोग्राम कहाँ पे जाएंगे, कर्नेल के अंदर जाएंगे, और कर्नेल फिर क्या करेगा, उनको एग्जीक्यूट करेगा, एंड इफ रिक्वायर्ड तो इट विल हैव एक्सेस टू द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि जो मेन जो एग्जीक्यूशन का काम है वो कौन करता है, आपका कर्नेल करता है इसके अंदर। तो उसके अलावा क्या है, जितने भी आपको टास्क परफॉर्म करने हैं,
that is all done with the help of application programs. इसके अलावा if you want additional functionalities as we have already discussed, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, you need to install other application programs that are of your use. अब कंप्यूटर स्टार्टअप की बात करते हैं, तो जब भी आप कंप्यूटर के पावर बटन को स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या होता है, ये प्रोग्राम आपके मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो फाइल्स होती है विच हेल्प द कंप्यूटर सिस्टम टू स्टार्ट, क्योंकि जब भी कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली कुछ फाइल्स क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, और वो फाइल्स कहाँ पे है आपकी, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम के अंदर है। एंड दैट प्रोग्राम इज रिजाइडिंग इनटू द रोम, read only memory or EPROM. EPROM you are well aware, erasable programmable read only memory, ठीक है जी। तो इनको जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है, जो रोम के अंदर रिजाइडिंग होता है, इसको हम बोलते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर का मतलब क्या है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्या है, दैट इज फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर एट द टाइम ऑफ परचेज। आपने परचेज किया कंप्यूटर सिस्टम, तो उस टाइम पे क्या हो गया, उसी टाइम पे आपका जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको हम बूटस्ट्रैप प्रोग्राम बोलते हैं, वो आपका रोम के अंदर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। वो सिर्फ रीड ओनली है। रीड ओनली किस लिए, रीड ओनली इसलिए जी क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, कंप्यूटर स्टार्ट होगा, उसका जो बेसिक जो आपका जो डेस्कटॉप है वो ओपन हो जाएगा। तो जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो एवरी टाइम द सेम प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि हर बार कंप्यूटर तो एक ही तरीके से स्टार्ट होगा ना, उसमें तो ऐसा तो है नहीं, कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है जी, कि एक बार तो किसी तरीके से एग्जीक्यूट स्टार्ट होगा, दूसरी बार किसी और तरीके से स्टार्ट होगा। तो इसलिए जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है, इसको क्या करते हैं, इम्बेड करते हैं रोम के अंदर, क्योंकि हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। हमें हर बार कंप्यूटर को स्टार्ट करना है नॉर्मली और आपका डेस्कटॉप स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए सेम सेट ऑफ जो प्रोग्राम्स है वो हर बार एग्जीक्यूट होंगे, सेम सेट ऑफ प्रोग्राम्स, इसलिए वी डोंट नीड टू चेंज देम, दैट्स व्हाई वी स्टोर देम इनटू द रोम, ठीक है जी। तो जब सिस्टम स्टार्ट होता है, जब बूटस्ट्रैप प्रोग्राम आपका लोड होता है मेन मेमोरी के अंदर, तो वहां पे क्या करता है, सिस्टम चेक करता है ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कि उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी रिसोर्सेज जो कनेक्टेड है, अटैच्ड है, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली अटैच्ड है या नहीं है, वो फंक्शनिंग मोड में है या नहीं है, ठीक है जी। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो क्या कर देगा, वो एरर जनरेट कर देगा कि यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है जी। चाहे वो माउस के अंदर है या कीबोर्ड के अंदर है, किसी और चीज के अंदर है, तो वो चेक करेगा सब प्रॉपरली कनेक्टेड है, सब प्रॉपर वर्किंग में है, तो ठीक है, वो सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा आपका, नहीं तो क्या होगा, वो एरर शो करेगा, ठीक है जी। तो फिर क्या करता है, सारे सिस्टम को पूरा चेक करने के बाद वो क्या करता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नेल है उसको लोड करता है, आपकी मेन मेमोरी के अंदर लोड कर देता है कर्नेल को, और आपका एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। कर्नेल जब मेन मेमोरी के अंदर आ गया तो एग्जीक्यूशन किसको करना है, कर्नेल को करना है, तो वहां पे जी आपका सारा एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कर्नेल, यानी कि आपका कंप्यूटर सिस्टम इज इफेक्टिवली स्टार्टेड। दिस इज द कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन शो की है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम दैट ईच एंड एवरी डिवाइस of your computer system, whether it is monitor, whether it is printer, keyboard, mouse or disk, these all are connected to the CPU through a controller. Every device is having its individual controller to control its functionings, to provide compatibility between the CPU and the particular device, चाहे वो आपकी डिस्क है, चाहे वो आपका कीबोर्ड माउस प्रिंटर है या आपका मॉनिटर है, तो सबके साथ में क्या होता है उसका, जैसे मॉनिटर के साथ में उसका क्या है, ग्राफिक्स अडेप्टर बीच में है, वो अडेप्टर क्या करवाता है, वो आपके ग्राफिक्स को कंपेटिबल कराता है आपके सीपीयू के साथ में, ताकि जो सीपीयू जो आउटपुट जनरेट करेगा वो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो सके। ऐसे यूएसबी कंट्रोलर होता है, वो क्या करता है, यूएसबी के थ्रू जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उनको कंट्रोल करता है, उनकी स्पीड को कंपेटिबल करवाता है, उनके डेटा का को मैच, डेटा स्पीड जो होती है उसको मैच करवाता है बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ बफर्स विद द
CPU, ठीक है जी। उसके बाद डिस्क कंट्रोलर, जो आपकी जो मेमोरी जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है, उस मेमोरी जो डिवाइसेस है, उन मेमोरी डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए क्या होता है, डिस्क कंट्रोलर होता है, ताकि उसके जो भी डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू एंड द मेमोरी होता है, जो डिस्क होता है, जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, उनके थ्रू क्या हो, वो कंट्रोल करे उसका मैकेनिज्म, उसका ट्रांसफर ऑफ डाटा को, और इफ एनी प्रॉब्लम अराइजेज इन बिटवीन, तो वो क्या करे, उसको हैंडल करेगा, ठीक है जी। तो दिस इज द जनरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सारे डिवाइसेस क्या होते हैं, एक जनरल जो आपकी जो बस जो होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है जी, उस बस के थ्रू सारे डिवाइसेस एक दूसरे, बस मींस द कम्युनिकेटिंग कनेक्टिंग मोड, ठीक है जी, जिसके थ्रू क्या है, सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, सिंपली यू कैन से वायर्स और द केबल्स थ्रू विच द डिवाइसेस आर कनेक्टेड, ठीक है जी। तो दिस इज द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। देन कम्स कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन। इफ यू टॉक अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस, तो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो सारे क्या, कौन एग्जीक्यूट करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम गवर्न करता है उनको, ठीक है जी। और वो सीपीयू जो है, सीपीयू वर्क्स इन द इन पैरेलल, दैट मींस concurrent execution is there by the CPU, concurrent not in the actual sense, but whether it is the time shared mechanism or the other mechanism it follows, but it executes the processes concurrently। concurrently का मतलब क्या है, मोर देन वन प्रोसेसेस क्या हो रही है, एक साथ एग्जीक्यूट होने लग रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और आपका सीपीयू है, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। यानी कि आगे हम प्रोसेस स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे क्लियरली आपको पता चलेगा कि जब भी आपका सीपीयू अगर कोई एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा है, कोई प्रोसेस, या उसको कोई इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना है ऑपरेशन, तो सीपीयू से उसको बाहर ले आते हैं और आई ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। आई ऑपरेशन के बाद उसको दोबारा सीपीयू के पास भेज देते हैं, ताकि सीपीयू की जो फंक्शनिंग है वो क्या ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो पाए, ठीक है जी। उसको हम इफेक्टिवली मैनेज कर पाए और उसकी जो एफिशिएंसी है, जो परफॉर्मेंस है, उसको हम बढ़ा सकें, ठीक है जी। तो ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन चार्ज ऑफ पर्टिकुलर डिवाइस टाइप। ये हमने बता दिया कि हर एक डिवाइस टाइप जो भी कनेक्टेड आपके कंप्यूटर से, उसका एक डिवाइस कंट्रोलर होता है, जो उसको कंट्रोल करता है, उस पर्टिकुलर डिवाइस मैपिंग करवाता है आपके सीपीयू के साथ में। हर एक डिवाइस कंट्रोलर के पास एक लोकल बफर होता है। लोकल बफर किस लिए होता है, क्योंकि सीपीयू की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो डिफरेंट होती है, और जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उनमें, वो उनकी हर एक डिवाइस की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो दोनों के बीच में जो स्पीड मिसमैच है, जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी का मिसमैच है, उसको मैनेज करवाने के लिए, उसको मैप करवाने के लिए कंट्रोलर के पास क्या होता है, एक लोकल बफर होता है। जहाँ पे भी स्पीड मिसमैच होगी, तो वो डेटा को क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है इन बिटवीन, और एज पर द स्पीड ऑफ द अदर डिवाइस, उसके अकॉर्डिंग डेटा को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है जी। सीपीयू का क्या काम है, सीपीयू डेटा को मूव करता है कहाँ से, मेन मेमोरी से लोकल बफर्स में, और लोकल बफर्स से मेन मेमोरी के अंदर। आईओ ऑपरेशन अगर कोई परफॉर्म हो रहा है, तो वो कहाँ पे होता है, आईओ ऑपरेशन कौन परफॉर्म करेगा, कोई भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस है, चाहे वो कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, या आपके स्क्रीन है, या आपका प्रिंटर है, या आपका प्लॉटर है, कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, तो वो कहाँ पे होता है, वो जो आईओ ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो होता है आपके डिवाइस से लोकल बफर के अंदर, क्योंकि इनपुट आउटपुट कहाँ पे होगी, लोकल बफर जो आपका डिवाइस कंट्रोलर के पास है वहां से, और आपके इनपुट आउट डिवाइस से ट्रांसमिशन होता है डेटा का, ठीक है जी। उसके बाद जो डिवाइस कंट्रोलर जो होता है, वो डिवाइस कंट्रोल, जब इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा लोकल बफर के पास आएगा, जो कि डिवाइस कंट्रोलर के पास है, तो डिवाइस कंट्रोलर फिर क्या करेगा, सीपीयू को इन्फॉर्म करेगा कि जी दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन इज फिनिश्ड, और दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन इज अंडर एग्जीक्यूशन। तो वहां पे उसको क्या करेगा, वो इंटीमेट करेगा सीपीयू को फॉर द पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ द डिवाइस, एंड दैट intimation is done with the help of the interrupt. The interrupt is just like a condition which allows the device controller to tell the CPU that this particular condition is there into the computer system and you need to act according to that. ठीक है जी। तो वहां पे प्रायोरिटी भी डिसाइडेड होती है कि किस इंटरप्ट की प्रायोरिटी हाई है, तो उसके अकॉर्डिंग सीपीयू क्या करता है,
आइदर कंटिन्यूज इट्स ऑपरेशन, और क्या करेगा, अगर प्रायोरिटी हाई है किसी इंटरप्ट की तो वहां पे वो क्या करेगा, वो सीपीयू जो करंटली जो एग्जीक्यूटिंग टास्क है उसको होल्ड करके और न्यू टास्क है उसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। देन कम्स स्टोरेज डेफिनेशंस एंड नोटेशंस रूल। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर सिस्टम तो स्टोरेज के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, बट स्टोरेज के बारे में वी विल डिस्कस